کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی زمین پر اگنے والی ہر فصل ایک مکمل سائنس اور قدرتی توازن کی مرہون منت ہوتی ہے؟ کیوں کپاس صرف مونسون کے بعد ہی بوئی جاتی ہے؟ گندم کے لیے بارش کا صحیح وقت اتنا اہم کیوں ہے؟ چاول کے کھیت ہمیشہ پانی میں ڈوبے کیوں ہوتے ہیں؟ اور آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب گنا کاٹنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نقصان دہ بن جاتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک غلط درجہ حرارت، ایک غلط دن یا بارش کی ایک غلط بوند مہینوں کی محنت کو برباد کر سکتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے کراپس یعنی فصلوں کے بارے میں۔ پاکستان میں فصلوں کے موسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا ہے خریف سیزن اور دوسرا ہے رابی سیزن۔ آئیے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ خریف سیزن وہ وقت ہوتا ہے جب فصلیں جیسے کاٹن، شوگر کین، رائس وغیرہ کی بوائی اپریل سے جون کے درمیان شروع ہوتی ہے اور ان کی کٹائی اکتوبر یا نومبر میں کی جاتی ہے۔ یہ فصلیں عموماً 25 to 40 ڈگری سیلسیس جیسے ہائی ٹیمپریچرز والے علاقوں میں بہتر ڈیولپمنٹ پاتی ہیں تاکہ انہیں ضروری ہیٹ یونٹس مل سکیں۔ اس دوران مانسون رینز یعنی موسم برسات کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی کی کمی کو پورا کر کے اریگیشن کو مکمل کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خریف کراپس کو کٹائی سے پہلے ایک ڈرائی سیزن کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ مرحلہ ان کی میچورٹی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رابی سیزن کی، جس کا آغاز مڈ نومبر سے دسمبر کے درمیان ہوتا ہے اور کٹائی کا وقت اپریل سے مئی تک ہوتا ہے۔ رابی سیزن کی فصلوں کو 15 to 35 ڈگری سیلسیس کے درمیان ماڈریٹ ٹیمپریچرز درکار ہوتے ہیں اور ان فصلوں کو خریف کراپس کے مقابلے میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موسم میں ہمیں ویٹ، میز، پلسز اور آئل سیڈز جیسی فصلیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب ایک اور اہم پہلو پر غور کرتے ہیں۔ ہر فصل کے لیے مخصوص رین فال یعنی بارش کی مقدار نہایت اہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ویٹ کو 450 سے 600 ملی میٹر، رائس کو 1200 سے 2000 ملی میٹر، شوگر کین کو 1500 سے 2000 ملی میٹر، کاٹن کو 750 سے 1300 ملی میٹر، ٹوبیکو کلٹیویشن یعنی تمباکو کی کاشت کو 400 سے 600 ملی میٹر، سٹرس کراپس جیسے اورنجز یا لیمنز کو 1000 سے 1200 ملی میٹر رین فال درکار ہوتا ہے۔ آج ہم کاٹن اور ویٹ کی کاشت کے عمل پر ڈسکشن کریں گے۔ کاٹن جو کہ ایک خریف کراپ ہے، اسے اپریل سے جون کے درمیان بویا جاتا ہے، جبکہ ہارویسٹنگ عام طور پر اکتوبر ٹو نومبر میں کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی کاشت جنوبی ایرڈ پارٹس آف پنجاب میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسٹرن سندھ اور سادرن پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی یہ اگائی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے اور یہ ہمیں کاٹن یعنی کپاس کی گروئنگ ایریاز، پیداوار والے علاقوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ نقشے پر دو مختلف کلرز رنگ دکھائے گئے ہیں۔ پرپل رنگ ان علاقوں کو ظاہر کرتا ہے جہاں کاٹن کے مین گروئنگ ایریاز، اہم پیداوار والے علاقے ہیں۔ لائٹ پرپل رنگ ان علاقوں کو ظاہر کرتا ہے جہاں کاٹن کے ادر گروئنگ ایریاز، دیگر پیداوار والے علاقے ہیں۔ سوئنگ یعنی بیج بونے کے مرحلے میں ٹیمپریچر کا 25 سے 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ سوئنگ سے پہلے سیڈز کو مخصوص کیمیکل سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ سیڈ بورن ڈیزیزز یعنی وہ بیماریاں جو بیج کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں سے بچا جا سکے۔ یہاں ڈرلر ایک ایسی مشین ہے جو سیڈز کو یونیفارم ڈیپتھ پر بو کر یہ یقینی بناتی ہے کہ تمام پلانٹس ایک ہی وقت میں ہارویسٹ کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر سیڈز بہت گہرے بوئے جائیں تو وہ جرمنیٹ نہیں کر پائیں گے یا اگر کریں بھی تو ان کی گروتھ سست یا سٹنٹڈ ہو جائے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر بیج ایک ساتھ جرمنیٹ نہ کریں تو ہارویسٹ مینج کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ اسی کانٹیکس میں سوئنگ کے دوران بارش کی اینٹیسپیشن یعنی پیشگی اندازہ لگانا اہم ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات بارش کے فوراً بعد زمین کے موجودہ موئسچر سے فائدہ اٹھا کر سوئنگ کی جاتی ہے۔ گروتھ کے مرحلے میں ضروری ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر 25 سے 40 ڈگریز تک ہو اور 10 مرتبہ آبپاشی کرنی چاہیے، ہر بار 10 سے 12 دن کے وقفے کے بعد۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ویڈز کو مینولی یعنی ہینڈ سے نکالا جائے۔ یہ کاٹن کراپ کپاس کی فصل ہے۔ یہ کاٹن ہماری بہت سی چیزیں بنانے کے کام آتی ہے جیسے کپڑے اور دھاگا۔ جب یہ تیار ہو جاتی ہے تو اسے چن لیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم فصل ہے۔ اریگیشن یعنی آبپاشی کو آسانی سے یوں سمجھیں جیسے آپ گھر کے باغیچے میں پودوں کو پانی دیتے ہیں تاکہ وہ ہیلدی رہیں۔ اسی طرح بڑے فیلڈز میں فارمرز اریگیشن کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کراپس کی بہتر ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکے۔ جب بات آتی ہے ہارویسٹ یعنی کٹائی کی تو ٹیمپریچر آئیڈیلی 30 سے 32 سی ہونا چاہیے۔ ہارویسٹنگ تب شروع کی جاتی ہے جب کاٹن بولز مکمل طور پر ڈرائی اور اوپن ہو چکے ہوں۔ اس مرحلے میں پہلی چنائی یعنی فرسٹ پکنگ 120 ڈیز پر، دوسری پکنگ 140 ڈیز پر اور تیسری پکنگ 160 ڈیز پر کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پکنگ کے اس عمل میں اکثر خواتین اور بچے شامل ہوتے ہیں کیونکہ کاٹن پکنگ کے لیے مشینز بہت ایکسپینسو یعنی مہنگی ہوتی ہیں۔
साथ ही डिजीज्ड या डैमेज्ड बोल्स को फाइन क्वालिटी बोल्स से अलग करके ओवरऑल क्वालिटी को बेहतर बनाया जाता है। अब आइए वीट की तरफ चलते हैं, जो कि एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो मिड नवंबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और उनकी हार्वेस्टिंग अप्रैल टू मई में की जाती है। वीट की काश्त ज्यादातर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब में होती है। नीज, ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सिंध में भी इसे उगाया जाता है। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें वीट, गंदम की ग्रोइंग एरियाज, पैदावार वाले इलाकों के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। डार्क ग्रीन रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां वीट, गंदम की मेन ग्रोइंग एरियाज, अहम पैदावार वाले इलाके हैं। लाइट ग्रीन रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां वीट के अदर ग्रोइंग एरियाज यानी दीगर पैदावार वाले इलाके हैं। सोइंग के वक्त टेम्परेचर का 4 से 25 सी के दरमियान होना लाजमी है। इससे पहले भी सीड्स को फंगिसाइड्स, जो कि एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है, से ट्रीट किया जाता है ताकि सीड बॉर्न डिजीजेज रोकी जा सके। इसके बाद ड्रिलर का इस्तेमाल करके सीड्स को यूनिफॉर्म डेप्थ पर बोया जाता है ताकि बीज बहुत गहरे ना हों, क्योंकि ऐसे में वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे या उनकी ग्रोथ स्लो या स्टंटेड हो सकती है, यानी रुक सकती है। वीट सोइंग भी अक्सर वेस्टर्न डिप्रेशन यानी मगरबी हवाओं के दबाव से आने वाली बारिशों की एंटिसिपेशन में या फौरन बाद अंजाम दी जाती है ताकि जमीन में मौजूद मॉइस्चर का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। अब हम बात करेंगे ग्रोथ के दौरान टेम्परेचर के बारे में। इस मरहले पर टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को 15 सी से 30 सी के दरमियान रखना निहायत जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह जरूरी है कि इरिगेशन यानी आबपाशी का अमल 20 दिन के वक्फे से कुल 4 मरतबा किया जाए ताकि जमीन और पौधे दोनों को मुनासिब मिकदार में पानी मुयस्सर आ सके। ये वीट क्रॉप है। इसी दौरान वीड्स यानी बेकाबू घास जो फूड ग्रेन्स जैसे वीट यानी गंदम में उग आती हैं, उन्हें मैन्युअली यानी हाथ से निकालना भी बहुत अहम होता है। ये अमल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जड़ी बूटियां जब पूरी तरह बढ़ जाती हैं तो बहुत से नए बीज पैदा करती हैं जो बाद में खेतों में एक संगीन बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इससे फार्मर्स यानी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मजीद ये कि फर्टिलाइजर्स यानी खाद और इंसेक्टिसाइड्स यानी कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है ताकि पौधों को इजाफी मदद फराहम हो सके और वो मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। अब आइए बात करते हैं हार्वेस्ट यानी फसल की कटाई के मरहले की। हार्वेस्ट के दौरान टेम्परेचर को 35 सी से 38 सी के दरमियान रखना चाहिए और साथ ही साथ सनी कंडीशंस यानी धूप वाला माहौल भी होना जरूरी है। हार्वेस्टिंग यानी फसल काटने का अमल इस वक्त शुरू होता है जब स्टेम्स ब्राउन हो जाएं, हाइट तकरीबन 4 फीट तक पहुंच जाए और ग्रेन यानी अनाज सख्त होने लगे। ये वो वक्त होता है जब फसल अपनी बेहतरीन हालत में होती है और बहुत अहम है कि हार्वेस्ट को थंडरस्टॉर्म्स यानी तूफानी बारिशों से पहले मुकम्मल कर लिया जाए, जो आमतौर पर मार्च टू अप्रैल के महीनों में आते हैं। अगर हार्वेस्टिंग थंडरस्टॉर्म्स के दौरान या बाद में की जाए तो ताज़ा हवा और अचानक बारिश के बायस स्टेम ब्रेक यानी डंडियों का टूटना मुमकिन हो जाता है, जिससे ग्रेन खड़े पानी के सामने आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में फंगस इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसे रस्ट कहा जाता है। ये बीमारी टोटल क्रॉप लॉस यानी मुकम्मल फसल के नुकसान का सबब बन सकती है। ये किसी क्रॉप फसल का हार्वेस्ट टाइम है। देखिए खेत कैसे सुनहरे रंग का हो गया है। अब ये फसल पककर तैयार है और इसे काटा जाएगा। उसके बाद इससे अनाज हासिल किया जाएगा। ये फार्मर्स के लिए खुशी का वक्त होता है। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है जिसकी काश्त अप्रैल से जून के दरमियान की जाती है और इसे अक्टूबर टू नवंबर में हार्वेस्ट किया जाता है। शुगर केन ज्यादातर उगाई जाती है सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल सिंध और पेशावर के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में। दीगर ग्रोइंग एरियाज में शामिल हैं वेस्टर्न एंड सदर्न पंजाब और ईस्टर्न सिंध। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें शुगर केन के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। येलो रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां शुगर केन के मेन ग्रोइंग एरियाज हैं। स्किन रंग उन इलाकों को जाहिर करता है जहां शुगर केन के अदर ग्रोइंग एरियाज हैं। हम जानते हैं कि प्लांटेशन के दौरान टेम्परेचर को 30 से 35 सी के दरमियान रखना जरूरी होता है। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट इसलिए अहम है ताकि माहौल इतना गर्म हो कि शुगर केन की डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। जब रो स्पेसिंग पर गौर करें तो 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की जगह दी जाती है, जबकि गहराई 4 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम ग्रोथ के मरहले पर नजर डालते हैं। इस दौरान टेम्परेचर को 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखना जरूरी होता है, जबकि 10 इरिगेशंस तकरीबन 10 टू 12 डेज के इंटरवल्स पर दिए जाते हैं। साथ ही वीड्स को मैन्युअली रिमूव किया जाता है और अगर जरूरत पेश आए तो फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स भी अप्लाई किए जाते हैं। ये गन्ने की फसल है। देखो ये कितनी लंबी और घनी है। इस क्रॉप से हम चीनी बनाते हैं,
जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये एक मीठी और अहम क्रॉप है। हार्वेस्टिंग के वक्त टेम्परेचर आइडियली 30 to 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब स्टेम सख्त हो जाए तो उस स्टेज पर हार्वेस्ट की जाती है, यानी स्टेम को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर कट करके फौरन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि किसी भी किस्म की डिले शुगर कंटेंट और वेट में लॉस का सबब बन सकती है। ये शुगर केन क्रॉप का हार्वेस्ट टाइम है। देखो, गन्ने के पौधे कट चुके हैं और खेत खाली हो रहा है। आइए अब राइस यानी चावल की बात करते हैं। राइस ज्यादातर वेस्टर्न सिंध और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब में उगाया जाता है, जबकि एडिशनल एरियाज में ईस्टर्न पंजाब, सदर्न सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान शामिल होते हैं। ये पाकिस्तान का नक्शा है और ये हमें राइस के ग्रोइंग एरियाज के बारे में बताता है। नक्शे पर दो मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं। डार्क ब्लू रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां राइस के मेन ग्रोइंग एरियाज हैं। लाइट ब्लू रंग इन इलाकों को जाहिर करता है जहां राइस के अदर ग्रोइंग एरियाज हैं। राइस कल्टीवेशन का पहला मरहला प्रिपरेशन कहलाता है, जिसमें राइस सीड्स को फ्लडेड नर्सरी फील्ड्स में एक यूनिफॉर्म डेप्थ पर बोया जाता है। फ्लडेड नर्सरी फील्ड वो नर्सरी होती है जिसमें पौधों को उगाने के लिए जमीन को पानी से भर दिया जाता है। इस दौरान कंट्रोल टेम्परेचर्स बरकरार रखे जाते हैं और तकरीबन 25 डेज के बाद सीड्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये अमल टेक्निकल टर्म सोइंग ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। ट्रांसप्लांटेशन से पहले सीड्स को मखसूस केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि सीड बॉर्न डिजीजेस से बचाव मुमकिन हो सके। जब ट्रांसप्लांटेशन का मरहला शुरू होता है, इस वक्त टेम्परेचर को 30 to 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखा जाता है। जमीन को अच्छी तरह प्लाव किया जाता है, वीड्स को रिमूव किया जाता है, बंद बनाए जाते हैं और जमीन को पानी से भर दिया जाता है। ग्रोथ के दौरान भी टेम्परेचर को 38 to 40 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है और खेतों को मुसलसल पानी से भरा हुआ रखा जाता है। साथ ही फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि फसल की सेहतमंद डेवलपमेंट जारी रहे। ये चावल की फसल है। देखिए, ये कैसे पानी में उग रही है। चावल हमारे लिए एक अहम ग़िज़ा है और उसे बहुत से खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी फसल है जिसे उगाने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। जब ईयर हेड्स यानी दाने गोल्डन और हार्ड हो जाएं, तो ये हार्वेस्टिंग का वक्त होता है। हार्वेस्ट के दौरान टेम्परेचर 30 to 32 डिग्रीज के दरमियान होना चाहिए और ड्राई और सनी वेदर जरूरी समझा जाता है। इस मरहले पर फील्ड से बंद तोड़कर पानी ड्रेन किया जाता है। इस तस्वीर में ये राइस क्रॉप की कटाई का मंजर दिखा रहा है। अब हम सबक का खुलासा पेश करेंगे। आज हमने फसलों के बारे में बात की। हमने समझा कि पाकिस्तान में फसलें दो मौसमों में तकसीम होती हैं, खरीफ सीजन और राबी सीजन। खरीफ सीजन में कॉटन, शुगरकेन, राइस जैसी फसलें अप्रैल से जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं, जबकि राबी सीजन वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स जैसी फसलों के लिए होता है, जो मिड नवंबर से दिसंबर में बोई जाती हैं और हार्वेस्टिंग अप्रैल मई में की जाती है। हमने मजीद ये जाना कि हर फसल के लिए टेम्परेचर, रेनफॉल और इरिगेशन जैसे कंडीशंस कितनी जरूरी हैं। मिसाल के तौर पर वीट को 450 to 600 मिलीमीटर बारिश, राइस को 1200 to 2000 मिलीमीटर और कॉटन को 750 to 1300 मिलीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। इसी तरह कॉटन और वीट की सोइंग, ग्रोथ और हार्वेस्ट के मरहलों में टेम्परेचर और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट का खास ख्याल रखा जाता है। शुगरकेन और राइस की काश्त के दौरान भी मुनासिब टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट जरूरी है। ओवरऑल हमने देखा कि दुरुस्त प्लानिंग और प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस ही फार्मर्स को क्रॉप ग्रोथ में मदद देती हैं। क्वेश्चन 1, दो अहम ग्रोइंग सीजन्स कौन से हैं? ऑप्शन ए विंटर, ऑप्शन बी खरीफ एंड राबी, ऑप्शन सी मॉनसून, ऑप्शन डी समर। आंसर ऑप्शन बी खरीफ एंड राबी। क्वेश्चन 2, सही इरिगेशन क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए फॉर ब्यूटी, ऑप्शन बी फॉर हेल्थ, ऑप्शन सी फॉर ग्रोथ, ऑप्शन डी फॉर प्ले। आंसर ऑप्शन सी फॉर ग्रोथ। क्वेश्चन 3, सोइंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए हार्वेस्टिंग, ऑप्शन बी प्लांटिंग सीड्स, ऑप्शन सी वाटरिंग, ऑप्शन डी कटिंग। Answer option B, planting seeds.